So hello students, this is the chapter 3rd SST, chapter 3rd Social Studies, Our Rich Heritage. Topic Architecture. Learning outcomes. Students will be able to identify the famous architectural movements of India and describe their features. इसमें फेमस आर्किटेक्चर मूवमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके फीचर्स को डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है. टीम वर्क एंड क्विज. पिक्चर ऑफ ताजमहल, जैसे पिक्चर ऑफ ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है, रेड फोर्ट, पुराना किला, हनुमान टॉम्ब, कुतुब मीनार रोड एंड चौक मार्कर. Instructions. Pull at the pictures of the moments in any empty box. Divide the class into 6 groups. Call the leaders of the group one by one and ask them to close eyes, pick the picture on the box. When all the groups are done picking their pictures, ask them to prepare a presentation on their respective moments, taking help of the content given in the text box. Thereafter, ask the students to come on the dais and to present their content. After that, play a quiz in the classroom wherein you would tell the features and the students would have to guess which moment you are talking about. Appreciate the students giving correct answer. Now we start the topic Temples of India. Students will be able to identify the temples of India and describe their features. इसमें डिस्कस करना है. एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड मीनाक्षी टेम्पल, सन टेम्पल एंड सांची स्तूप. ये इसके इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी आपको ना प्रिपेयर करनी है और आपको पता होना चाहिए कि ये टेम्पल्स कहाँ हैं, सन टेम्पल कहाँ है, वेयर इज़ द सन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूप. सो शो द स्टूडेंट्स पिक्चर्स इन द फॉलोइंग टेम्पल्स. आपको ये पिक्चर्स आपको शो करनी है. कौन कौन सी? मीनाक्षी टेम्पल, सन टेम्पल एंड सांची स्तूप. ओके, सो फाइंड आउट द इंफॉर्मेशंस अबाउट दीज टेम्पल्स and having them describe the architecture of the three temples. Write down their thoughts on the board. Thereafter, draw the following board on the board. So there is a three temples and you find out the place. Where is the Meenakshi temple, where is the Sun temple, where is the Sanchi Stoop, and you put down the place column. Where is the place? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है वो आपको उसके प्लेस के कॉलम में लिखना है. सन टेम्पल कहाँ है, डेडिकेटेड टू गॉड, ये किस गॉड का मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल. सन टेम्पल कौन से भगवान का टेम्पल है. एंड सांची स्तूप ये किस गॉड को डेडिकेटेड है. आर्किटेक्चर फीचर्स भी आपको लिखने हैं कि इसको किसने बनाया, इसके आर्किटेक्चर कौन थे, वो आपको यहाँ पे फीचर्स लिखने हैं. बस आपको सिंपल 1 पॉइंट या फिर 1 लाइन में आपको आर्किटेक्चरल फीचर्स आपको लिखने हैं. एंड देन वी डिस्कस अबाउट दिस. हैव द स्टूडेंट्स कंप्लीट द टेबल इन देयर नोटबुक. ये आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ये टेबल आपको बनाकर विथ द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. And complete the table on the board with the help of the students. Also tell the students about the carvings of Sanchi Stupa, depicting the Jatka tales. Now next topic, paintings and art craft and artifacts. अब इसमें आपको मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, मटेरियल की आवश्यकता रहेगी. पिक्चर्स ऑफ अजंता एंड भीमबेटका केव पेंटिंग. मतलब अजंता और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, इनको ये गुफाएं की पिक्चर कैसी हैं, इनको पेंट करना है. पिक्चर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल, राजस्थानी एंड पहाड़ी. So now we discuss about instructions. Show the students the picture of the cave painting of Ajanta and Bhimbetka. आपको ये पिक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है
भीमबेटका की और अजंता की। हैव देम डिस्क्राइब्स द पेंटिंग, राइट डाउन देयर थिंग्स ऑन द बोर्ड। नाउ ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है इसके कुछ थिंग्स, इसके कुछ थॉट्स इसके बारे में। List down the names of the miniature painting on the board. Show the picture of each of these paintings. Have the students appreciate them. Okay. Now testing the students previous learning. Ask them, मतलब आपको इसके बारे में पहले से आपको कुछ पढ़ना है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। Write down their response on the board and tell them about the different kinds of artifacts found in India. कौन कौन से अलग अलग प्रकार के आर्टफैक्ट्स हैं अपने इंडिया में, जो अपने इंडिया में पाए जाते हैं। नाउ होल्ड अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिस्कस करना है। वेयर इन स्टूडेंट्स वुड टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द हेरिटेज, कि हमें कौन कौन से हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आर्किटेक्चरल मूवमेंट्स, टेम्पल्स, पेंटिंग। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हैं। शाहजहां, ये आपको मालूम होना चाहिए शाहजहां कौन थे, इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने ताजमहल बनवाया था, कहाँ बनवाया था। ये सिंपल सी नॉलेज है जो आपको फाइंड आउट करनी है, आपको कलेक्ट करनी है। ओके, सेकंड है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मुमताज महल, कोणार्क, राजस्थानी पहाड़ी। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट का बी 12, सेकंड का इट इज अ मिनरेट, थर्ड का ए टोरानास, फोर्थ का ए ताजमहल, बी का ए फतेहपुर सीकरी। अब हु गॉट द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिल्ट। इसमें ये पूछा गया है कि ये किसने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, अकबर, हामिदा बानो बेगम एंड शाहजहां। मतलब इसमें आपको इसके सामने लिखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ, वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने क्या बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, एंड अकबर ने क्या बनवाया था, हामिदा बानो बेगम ने क्या बनवाया था, और शाहजहां ने क्या बनवाया था। ये आप इसके सामने लाइन को आप मैनेज करके आप इसको लिखोगे इसी के जस्ट सामने। अब नेक्स्ट है डी है, डी फर्स्ट है ताजमहल। तो इसका देखिए, इसका ताजमहल का है, तो ताजमहल किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। इसका है बी, बिल्ट बाय शाहजहां फॉर हिज वाइफ। शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। मुमताज महल, जो उनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल। रेड फोर्ट किसने बनवाया था, बिल्ट बाय शाहजहां, ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ये कहाँ पर है, इन दिल्ली, ये दिल्ली में है। फिर है कुतुब मीनार द टॉलेस्ट ब्रिक मिनरेट इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी ईंट की बनाई गई एक मीनार है, जो कहाँ पर है, जो ये पूरे विश्व में कुतुब मीनार है। फोर्थ है सांची स्तूप। सांची स्तूप किसकी लाइफ से रिलेटेड है, सांची स्तूप रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द बुद्धा, ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, जो महात्मा बुद्ध थे। फिर है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, ये क्या है भीमबेटका, ये केव है, केव मतलब गुफा। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। आपकी एक्सरसाइज बुक में से ये कुछ आंसर्स दिए गए हैं। द सन टेम्पल एट कोणार्क इन उड़ीसा इज अनदर मैग्निफिशिएंट वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। जो सन टेम्पल है ये कोणार्क में है, कोणार्क उड़ीसा में है, और इज अनदर मैग्निफिशिएंट वर्क, यहाँ पे खूब अच्छा वर्क किया गया है ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा। द टेम्पल इज बिल्ट इन द फॉर्म
ऑफ चैरियट ऑफ द सन गॉड, मतलब द टेम्पल इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ द सन गॉड, मतलब ये टेम्पल जो है ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है ये सूर्य देवता के लिए, सन गॉड के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा है सन टेम्पल। एंड इज हैवीली डेकोरेटेड विथ स्टोन कर्विंग्स, और इसको बहुत बड़े इसको पत्थरों से डेकोरेट किया गया है, इसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है, वो भी बड़े बड़े पत्थरों से गुफा के एक आकार में। द टेम्पल स्टैंड्स फॉर द जर्नी द टेम्पल स्टैंड्स फॉर द जर्नी ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द डाउन टू dusk. There were huge 24 stones wheels at the base of the temple. मतलब इस टेम्पल की जो जर्नी है वो सन से ही स्टार्ट होती है, सन से लेके स्काई तक। और ये जो स्टार्टिंग में जो सूरज की रोशनी आती है तो वो इसी मंदिर से होती हुई आती है, जो सुबह 5 बजे की जो रोशनी होती है, फिर जब सूरज डूबता है। सो देयर आर यूज 24 स्टोन्स, इसमें खूब बड़े 24 पत्थरों 24 स्टोन्स का यूज हुआ है। व्हील एज द बेस ऑफ द टेम्पल के बेस के रूप में। ताजमहल एक्यूसिटिवली ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज एक्चुअली अ mausoleum or a tomb built by the मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। जो ताजमहल है ये खूब बड़ी खूब अच्छी खूब खूब ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, और ये शाहजहां ने बनवाई थी अपनी वाइफ की याद में। So chapter 4 we will complete the next session. Okay, bye, thank you.